رحم کرنے والا ہے. حاضر ہیں ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس سیریز میں ہم کشمیر کے حالات کو کور کریں گے, چاہے وہ سیاسی ہو یا سوشل ہو, دونوں پرسپیکٹ کو ہم لے کے چلیں گے. تو اسی پس منظر میں ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے, بہت فیمس شخصیت ہے, تو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صلاح الدین شاہ صاحب, السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تو سر ہم نے کہا ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایک ایسے انسپائرڈ پرسن کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے انسپائریشن بھی ملے اور ہماری ویڈیوز کو بھی اس سے فروغ حاصل ہو. تو ہم ویورز آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ایز آپ مون کریشن تو آپ کو سب پہچانتے ہیں, آپ انٹرویو میں رہتے ہیں. ہم آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ایک اوور ویو دینا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو. تو کائنڈلی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں, آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں فرسٹ آف آل سب کو بتائیں کہ اب ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو کائنڈلی آپ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ, ہمارے ویورز کے ساتھ. جی الحمدللہ, بچپن سارا مظفر آباد میں گزرا, یہی کہ اسٹڈیز اور سارا سلسلہ جاری رہا. اور آئی ٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے عزت اور مقام سے نوازا. پہلے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا, پھر جو فرسٹ اچیومنٹ تھی ہماری مظفر.com ویب سائٹ لانچ کی, پھر اس کے بعد ٹریننگ کی طرف ہم لوگ آ کے الحمدللہ اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں, نوجوانوں کو اسکلز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے فیوچر جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ان کے مستقبل کے لیے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جو بچے سیکھ رہے ہیں, بے شمار چیزیں آ رہی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, ای کامرس سے, بہت سی فیلڈز ہیں جن میں بچے سیکھ رہے ہیں اور آگے پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھا فیوچر. اچھا صلاح الدین صاحب, ہمیں یہ بتائیں جس وقت آپ نے اپنا یہ انٹرپرینور کا سفر سٹارٹ کیا, اس وقت تو یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں تھا آئی تھنک, کوئی اسپیشلی آزاد کشمیر کے اندر. تو آپ کو یہ ویژن کہاں سے آیا یا کیسے کلک کیے بات کہ میں اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جاتا ہوں؟ جی, جب فرمایا آپ نے کہ مطلب اس ٹائم پہ 91 سے جب میں نے میٹرک کیا, اس کے بعد سے اس فیلڈ میں نے قدم رکھا, اور 2002 میں جو ہماری اچیومنٹ تھی پہلی ویب سائٹ کی, اس ٹائم پہ اتنا اویئرنیس نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے پیشن اور اپنے شوق کو فالو کرے تو اس میں کچھ نہ کچھ آگے ایک مقام آتا ہے کہ حاصل کر لیتا ہے اور گرو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ہی کامیابی لکھی ہوتی ہے. تو میرا بھی یہ پیشن تھا, یہ شوق تھا, جی ماشاء اللہ, اسی میں بڑے. اور باقی یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ویب سائٹ اور ایک انسٹیٹیوٹ بنانے سے آج اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہنچا دیا. ہزاروں ہمارے گریجویٹس اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے لیے خود گھروں میں بیٹھ کے اس وقت اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور آپ کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا باعث بن رہے ہیں. اب آپ کے کہنے کا مقصد ہے مطلب کہ آپ نے ایک اسٹیپ لیا, اسٹارٹ کرنا چاہیے, تھنکنگ کو چھوڑ کے ہمیں کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے, تو وہ ہمیں ایک بڑے پیمانے پہ چیز لے کے جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا اکثر یونیورسٹی میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں, انٹرپرینورشپ میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میں اکثر یونگسٹرز کو کہتا ہوں جی آپ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی ضروری ہیں, لیکن آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ڈگری والے پیچھے رہتے ہیں اور اسکلز والے آگے رہتے ہیں. ہمارے یونگسٹرز کو یہ بڑا بنیادی ضرورت ہے کہ میٹرک ایف ایف ایس سی کے بعد ہی وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آ جائیں. چھوٹی موٹی آڈ جابس بھی اگر ہیں, کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی ہے وہ ضرور کریں. فزیکل جابس کی طرف اگر وہ کام کرنا چاہیں, ان کا شوق ہے کسی بھی فیلڈ میں کام کریں. آئی ٹی کی طرف آتے ہیں تو آن لائن بہت سارا کام ہے, ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں, گیمنگ کی طرف آ جائیں, یا ایون آن لائن پڑھانے کی طرف ہی. قرآن حافظ قرآن ہمارے کئی بچے ہیں, انہیں ہم گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ وہی قرآن کی تعلیم آن لائن پڑھائیں. یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں بہت سارے بچے ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں. انٹرپرینورشپ کی جہاں تک بات ہے کہ آج ہر فرد مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے ہر فرد ہر گھر متاثر ہے. تو جب تک گھر کے 4-5 افراد خود اس میں کام نہیں کریں گے, اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ارننگ کا باعث نہیں بنیں گے, تو آئندہ آنے والے وقت میں ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے. صلاح الدین بھائی ایک چیز اور اس میں ہم ایڈیشن کرنا چاہیں گے, میں آپ سے یہ بھی انفارمیشن لینا چاہوں گا. ابھی کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے پاس, یا کچھ لوگ اپنا بزنس نہیں اسٹارٹ کر سکتے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ پہلے وہ جاب کی طرف جائیں, پھر وہ پیسے تھوڑے سے جنریٹ کریں, پھر بزنس کی طرف آئیں گے؟ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ اکثر ہمارے بچے چونکہ رسک لینا, اور جب فرمایا آپ نے کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بزنس بھی اس کے لیے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. وسائل کیسے جنریٹ کیے جا سکتے ہیں, میں نے اپنے انٹرپرینورشپ کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ٹاپ 10 ایسے بزنسز مظفر آباد ضلع کشمیر کی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جس میں لو انویسٹمنٹ
जीरो इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो काम कर सकते हैं, मतलब उसमें लेके आ सकते हैं। जॉब की जहाँ तक बात है 2 साल या मैक्सिमम 4 साल कोई भी यंगस्टर अगर मैट्रिक FFSC के बाद अगर वो जॉब की तरफ आता है, डेफिनेटली वो काम का एक्सपीरियंस सीखे, लेन देन सीखे, पब्लिक डीलिंग सीखे, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जो कि आपको बुक्स से नहीं मिलता, वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। 2 साल 4 साल आप जॉब जरूर करें, लेकिन आप तैयार करें कि आपने बिजनेस करना है। हमारा अलमिया शायद ये कि गोरों ने तो खुद प्रैक्टिकल हो गया और हमने किताबों पे लगा दिया, मसला ये है हमारा साथ। अच्छा, ये तो आपकी सलाउद्दीन साहब सक्सेस स्टोरी है, सब जानते हैं, लेकिन मैं भी ये जानना चाहूंगा और व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि कितनी हार्डशिप आपकी हुई, कितनी मुश्किलात आपको इसमें आई, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये एक दिन में सक्सेस स्टोरी नहीं बनती, कितनी हार्डशिप करनी पड़ती है। कहा जाता है, मिसाल दी जाती है जी, आइसबर्ग जो होता है ऊपर वो 10 to 20% दिखाई देता है, लेकिन 80% उसका समुद्र के अंदर होता है। तो एक मकाम तक पहुंचने के लिए आपको तसलसल के साथ, जुनून के साथ, पैशन के साथ लगे रहना होगा। जितना मुसलसल आप अपने काम में, अपनी फील्ड में, अपने पैशन के साथ जुड़े रहेंगे, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला के साथ आपको उसमें आपका जो मुकाम है, आपकी इज्जत है, वकार है, गुडविल आपकी डेवलप होती है। मैं अक्सर यंगस्टर्स को यही मशवरा देता हूँ कि आप अपने माइंड में शॉर्ट टाइम पीरियड ना रखें, प्लानिंग्स करें, ठीक है, 5 years की 10 years की प्लानिंग करें, आप उस फील्ड में हैं, उसके लिए लगे रहें, तब वो दो करते रहें। लेकिन कभी भी किसी भी फील्ड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से स्पेशली बात की जाती है कि आपने कोई शॉर्टकट अपने माइंड में कभी नहीं रखना। जो भी आजकल बहुत सारी चीजें जैसे ऐप्स आ रही होती हैं, बच्चे यूज कहते हैं कि इस हफ्ते हम 2,000 अगले हफ्ते 10,000 कमाएंगे, वो जितने जल्दी कमाते हैं उतने जल्दी उसमें लॉसेस भी हो रहे होते हैं, जो कि वो सस्टेनेबल चीजें नहीं हैं। तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, उसको पॉलिश करें, स्किल बेस्ड जो आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, उसका एक कहना चाहिए उसका जो फ्यूचर है वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है, बेशक ऐसे ही। और सलाउद्दीन साहब एक चीज और भी है कि शेयर करें, या मेरी भी ज़हन में है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको लिए घर से सपोर्ट होना मस्ट है। तो आप मुझे बताएं कि आपके घर से सपोर्ट क्या क्या सिनेरियो था आपको हमें दिखाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लकीली हमारी फैमिली ज़्यादा खानदानी बिजनेस में माशाअल्लाह थे, तो उसमें मुझे उस तरह की तो ऑर्डर नहीं आई जिस तरह के अक्सर हमारे यंगस्टर्स में सुनने में आती है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स में से गिला करते हैं बच्चियां, खुसूसन ज़्यादा फीमेल्स, कि उन्हें घर से इजाज़त नहीं थी घर से बाहर निकलने या बिजनेस की तरफ आने की, या इस तरह के। वो क्या मुजफ्फराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। कुछ खवातीन जो इससे पहले आज से 4-5 साल पहले घर से बैठ के होम बेकिंग का काम कर रहे थे, आज वो फ्रंट पे आके माशाल्लाह अपने सेटअप्स भी चला रहे हैं और आगे जॉब्स दे रही है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आज वो वक्त नहीं रहा कि आप अपने बच्चों को मजबूर करें जी कि सिर्फ आपके सामने फील्ड जो है इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, उससे हट के दुनिया बेशुमार फील्ड्स के ऊपर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो एक अलमिया हमारा ये भी है आजाद कश्मीर के अंदर कि यहाँ पे सिर्फ फोकस सारा सरकारी सेक्टर पे डाला जाता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बचा फरमाने देखिए, लेकिन पिछले 5-10 साल से मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, हमारे यंगस्टर्स मास्टर्स एंड फिर PhDs, पिछले साल की जो फिगर आई है तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा हमारे यूथ जो है वो मुल्क छोड़ के उन्हें मुल्क चली गई है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ सरकारी की बड़ी सिचुएशन हो चुकी है। स्पेशली आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब सरकारी जॉब ना होने के बराबर, तो उसके बाद चीज़ जो चल रही है कि पेंशन भी खत्म हो गई, वो भी जो जॉब था सरकारी जॉब का वो भी खत्म हो गया। तो डेफिनेटली हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को पैरेलल अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि वो सरकारी जॉब से हट के अपने बिजनेस की तरफ आए और जॉब देने वाले बने। जी, जॉब देने वाले बने। एक ये सबका जारिया भी होता है और अल्लाह ताला ने 9 हिस्से भी बिजनेस में रखे और एक हिस्सा नौकरी में रखा। तो अच्छा, तो इसको आगे लेके चलते हैं। आप ये बताएं कि चले एक एज अ प्रोफेशनल तो हम जानते हैं, अभी आप डिफाइन भी कर रहे हैं, सारे आपको जानते भी हैं। अब ये आप ये बताएं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो जॉब करता बंदा वो 9 to 5 देख रहा होता है, एग्जैक्ट ड्यूटी के अंदर लिमिटेड होता है, लेकिन जो बंदा बिजनेस कर रहा होता है तो 24 आवर उसका बिजनेस जी सर आपको सोए हुए भी उसके माइंड में चल रहा है किस तरह से मजीद अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलना होता है। तो डेफिनेटली हमारी 24 आवर्स की जॉब होती है, उसके साथ साथ फैमिली को मैनेज करना भी कहना चाहिए कि टाइम टेबल आपका बना हो कि कितना टाइम आपने बिजनेस को देना है, कितना टाइम आपने फैमिली को देना है, फिर आपकी सोशल लाइफ भी होती है, उसको
भी लेके चलना होता है। शुरू के जो टाइम होते हैं, जो जब तक आप जिम्मेदारियों में नहीं पड़े होते, आपके पास फ्री टाइम होता है, आप 5 साल 10 साल जम के लगाएं अपने बिजनेस में, टाइम दें ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो करे और आप टीम बिल्ड करें। देखिए कोई भी कारोबार मैं समझता हूँ ग्रो नहीं कर सकता अगर आप इसमें टीम आज वो दो नहीं रहा, वो सेट वाला सिस्टम भी एक सिंगल पर्सन और फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप टीम बिल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 5 से 10 साल में आपकी टीम के साथ आपकी मजीद ब्रांचेस भी बिल्कुल टीम आपका एज अ एसेट होता है, एसेट शुमार होता है कंपनी का। एसेट आप जनरेट करेंगे आप अपना, तो तभी आप आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। आप इसी से आप निकलते कि एज अ फादर आप किस तरह चल रहे हैं, सिस्टम क्या है, या बच्चों का क्या मोटिवेशन, या बच्चे आपसे क्या मोटिवेशन ले रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से मतलब बच्चे देख रहे होते हैं जो काम नाम है, फेम है आवाम के अंदर, अल्लाह के फजल करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां, तो बड़ी बेटी ने मैट्रिक के बाद ही उसने माशाल्लाह अपना सोशल मीडिया के ऊपर पेज बनाकर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर माशाल्लाह। और बीइंग ए प्राउड फादर, मैं अक्सर बच्चों को उनकी मोटिवेशन के लिए अपनी बेटी की मिसाल देता हूँ कि उसने मैट्रिक की जो 2.5 महीने की छुट्टियां थी उसमें उसने 65,000 की है अपने पैशन के ऊपर, अपने शौक के ऊपर छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स बना करके अपने वो इंस्टाग्राम पेज के ऊपर शेयर कर रही होती है। तो बच्चों के लिए, बच्चे अगर इतनी छोटी एज में जिम्मेदारी में पड़ेंगे, पैसों के लेन देन में पड़ेंगे, उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर्स और पैसों के खर्च करने का शऊर आ जाएगा, तो वो उनकी आइंदा आने वाली जिंदगी में उनके लिए बहुत बेहतर है। बहुत छोटी एज में मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ यंगस्टर्स को कि आप जिम्मेदारी और वालिदैन को भी जिम्मेदारी डालना चाहिए बच्चों के। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आप ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि आजकल जो हमारी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें आईटी की कितनी ज्यादा डिमांड है या रिक्वायरमेंट है या नीड है? देखिए आईटी तो हर जगह पे जरूरत है। आईटी के तो कोई भी बंदा इस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे किसी भी फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी खिते में हो। हमारे यहाँ चूंकि चीजें थोड़ा देर से आती हैं और मसाइल ना होने के बराबर में एनर्जी के भी क्राइसिस है, इंटरनेट का भी है, लेकिन उसके बावजूद एज ए पर्सनली अगर कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन लेके चलता है, इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करें। और प्रोफेशनली जो लोग कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास आइडिया बड़ा मैटर करता है। आपके पास आइडिया, यूनिक आइडिया हो जो जिसकी सोसाइटी को जरूरत हो, कम्युनिटी को जरूरत हो, उस आइडिया को लेके आए, उस पिच को फ्लोट करें, आपको इन्वेस्टर्स खुद मिल जाएंगे। अगर आपके आइडिया में दम है, आप परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, तो आप अपने स्टार्टअप के साथ अपने साथ मजीद 8-10 लोगों की टीम। गवर्नमेंट का आप इसमें क्या रोल समझते हैं? देखिए गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए वो तो कर नहीं रही, अक्सर कहना हमारा ही होता है, लेकिन मैं बीइंग ए सिटीजन मेरा हमेशा से पॉजिटिवली मेरे आइडियाज में है, मैं अपनी टीम को भी गाइड करता हूँ कि हम हर काम अगर गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो फिर निज़ाम करना मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और जो फैसिलिटीज हैं, आईटी की बैकबोन जो है वो इंटरनेट, जितनी स्पीड इंटरनेट की अच्छी होगी, जितनी बैंडविड्थ अच्छी होगी, उतना ही हमारे कोई भी फील्ड का बच्चा हो, जैसे मैंने पढ़ाने की बात की, जैसे मैंने ऑनलाइन सर्विसेज की बात की, वेब डेवलपर्स की बात की, गेम डेवलपर्स, इवन लास्ट मेरा एजुकेटेरियन पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो गेम डेवलपमेंट पे था कि बच्चे गेम्स खेलते बहुत हैं, तो उस पे अगर उनको पॉजिटिव लाया जाए तो गेम इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में। तो इस तरह की चीजों के लिए गवर्नमेंट अगर हमें फैसिलिटेट हमारे यंगस्टर्स को ऐसे जो कोर्सेज हैं अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कर रहे हैं, इंटरनेशनल डोनर्स को लेके आए, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने मोटिवेशन की कोशिश की, गूगल की सर्टिफिकेशंस हमने यहाँ पे लॉन्च करवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 500 में से 374 हमारी सक्सेसफुल सर्टिफिकेशंस गूगल की रही है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस तरह के इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल कोर्सेज ऑफर करें ताकि हमारे यंगस्टर्स स्किलफुल होकर के अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। माशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। और सर मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमारा ओल्ड माइंड सेट है, हम चीज एक्सेप्ट या करते हुए बहुत टाइम लगा देते हैं, जिसमें पूरे 100 साल आगे हो जाते हैं, जब वो फिनिश करते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं। इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसा ही है उसमें, वो तो फिर हमारा एक अलमिया है कि हम किसी भी चीज को फौरी टेबल पे अडॉप्ट नहीं करते। एक दौर था जब चांद पे कदम रखा गया तो हमने उसको भी हराम करार दिया। असल में दीन ले आते हैं बीच में, हर चीज में हम लोग असलियत का शिकार हो जाते हैं या फिर मिथ्स का शिकार हैं कि हम टेक्नोलॉजी में अब जो चीजें एआई में आ रही हैं वो भी हम उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और दाएं बाएं देख रहे हैं कि उसका भी नेगेटिव इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आजकल पैसों के लेन देन में एआई की आवाज की
मैच करके लोगों से पैसा ले लिया जाता है या कोई उनके अकाउंट से उड़ा लेते हैं पैसे, तो लोगों को शोर आगाही देना इसमें बड़ी अच्छा, हम आजकल के दौर से बात करें तो आजकल अप टू डेट हो गई है हर चीज, तो ये हमें कितना नॉलेज के करीब रहना चाहिए कि हमें ग्रो करने के लिए मौके मिलेंगे? नॉलेज का आप जो बताए अप टू कितना अप टू डेट हमें एक पर्सन को रहना चाहिए, एक सिंगल पर, आम बंदे को मिले या किसी को मिले हमें? जी हाँ, देखिए अब हर इंसान के हाथ में, हर घर में इसमें तो 2-4 सेल फोन तो मौजूद है। अब जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन मौजूद है, अगर वो शख्स ये कहे कि मुझे दुनिया का इल्म नहीं है, तो कहता हूँ उसकी अपनी बदकिस्मती है। उसकी एंड्रॉइड फोन के अंदर हर किस्म की इंफॉर्मेशन है। अब वो पूछता है कि उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करें या अपने लिए एजुकेशन पर्पस के लिए अगर यूज करें। एंड्रॉइड फोन के होते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए, कोई भी शख्स अपने अंदर अपने आप को अपडेट कर सके। फ्री कोर्सेज हैं, फ्री लर्निंग है, यूट्यूब चैनल्स हैं, प्रोडक्टिवली अपने वक्त को इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि सिर्फ स्क्रॉल करता रहे, फेसबुक को कमेंट्स करता रहे, अपने आप को नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व करे। तो हम हमारे से ये भी शेयर करें कि स्टार्ट डे टू टिल दैट टाइम या इंशाल्लाह इन फ्यूचर हाउ मच इट विल, कि आप इसमें कितनी कैपेसिटी आपने देखी, आपको कितना पे बैक मिला इस सेक्टर के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये एक ऐसी फील्ड है जो कि पिछले 25-30 साल से मैं इस फील्ड में ग्रो ही कर रही है। आइंदा भी मेरे 50-100 साल ये ऐसी फील्ड है जिसमें हाँ इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। लोग अगर मैं कहूँ कि आज से 15 साल पहले मैंने जो कोर्सेज कोरोड्रा सीखा था या उसको मैं आज इम्प्लीमेंट करूँ तो आज उसका नाम कोई ले नहीं रहा। अपने आप को वक्त के साथ अपडेट करना, ये वो नोकिया की मिसाल है कि नोकिया ने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट भी किया था, वो रह गया और बाकी टेक्नोलॉजी आगे चली, अपडेट करते रहना वक्त के साथ, ये इंशाल्लाह। तो चले ये बातें तो चलती रहेंगी, हमें ये बताएं कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? ये हम जानना चाहेंगे। अभी तो पिछले 20-25 साल से ओढ़ना बिछोना जो है, बस वो कंप्यूटर कुछ ना कुछ लर्न करना, सीखना। आज भी इट्स अ टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूं। रात को मैं 2 घंटे में सीख भी रहा होता हूं, माशाल्लाह कह रहा होता हूं। तो जी सॉरी टू कट यू दैट पॉइंट कि आप अभी भी चीजों को लर्न कर रहे हैं, स्टेज पे आके आपने कट नहीं किया, ये कामयाबी की वजह है। ये अभी देखिए ना, मेरा पिछले जो 10-12 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूं क्लाइंट को, और 2013 में मैंने फर्स्ट टाइम सीखा, फिर 2018 में मैंने शाम सरवर साहब से सीखा, और लास्ट मैंने अभी 2022 में सेम टॉपिक 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से 3 डिफरेंट टीचर्स से। लेकिन जब सीखा तो तीसरे टीचर को भी मैंने ये नहीं बताया कि मैं 10 साल से जो मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, मैं अपने आप को हमेशा प्लेन पेपर की तरह रखता हूँ, और उसमें सीखने में कुछ ना कुछ हर दफा नया सीखा जाता है, और सीखने में को मैं एंजॉय करता हूँ। जितनी लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग और नई चीजों को सीखना, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ। ये एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है कि इसको हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपको हम एक पर्सनैलिटी देके आपको एक दिन उसके साथ गुजारना है, तो आप कश्मीर की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी या शख्सियत है कि जिसके साथ टाइम गुजारना चाहिए? बहुत सारी शख्सियात है जी, इसमें कुछ तो यूँ कह लीजिए पॉलिटिकल हैं, मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई ऐसा लेना नहीं है। एजुकेशन में माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी परफॉर्म की है। हाँ, जो जिंदगी का मकसद है कि जो दूसरों के काम आते हैं, जो सोशल, तो हमारे जिस तरह कोरट के हैं मीरपुर में, जिस तरह उन्होंने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी वक्त कर, माशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ हर एक को माशाल्लाह अपने वसाइल दे कि आप यतीमों के लिए और नौजवान बच्चों के लिए कुछ कर सकें जी। तो मेरे वो रोल मॉडल हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। माशाल्लाह। तो थोड़ा हम एंड कर रहे हैं, तो इसमें आप कुछ चीज ऐड करना चाहिए, कुछ पैगाम देना चाहिए जी? आज के जिस तरह भी आपका ये मैसेज है, आपकी तरफ से, आपके मीडिया, आपके चैनल की तरफ से, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप यंगस्टर्स के हवाले से, उनके लिए, उनके अवेयरनेस के हवाले से आपने ये सिलसिला जारी किया है। मेरा पैगाम यंगस्टर्स के लिए, अगर कंपैरिजन के बारे से बात की जाए कि नौजवान डिग्री लेने के बाद उनके पहले माइंड में होता है जी हम नौकरी करें, नौकरी की तरफ जाएं या बिजनेस की तरफ। तो नौकरी के बारे में वैसे भी कहा जाता है नौकरी सिर्फ एक पर्सन को या एक फैमिली को पालती है, जबकि बिजनेस जो है वो खानदान पालता है। ठीक है, तो बिजनेस की तरफ जरूर आए, लर्न करें, सीखें, तजर्बा हासिल करें, अपने सीनियर से सीखें, असातिज़ा की कहना चाहिए खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उसके बगैर दुनिया नहीं मिलेगी। सर, थैंक यू सो मच।
تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم یہ بلاگس ہمارے کنٹینیو رہیں گے. ہم آپ کی ایک ماشاء اللہ ایک سکسیس اسٹوری بھی ہے جو شیئر بھی ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کور کریں گے آپ کے ساتھ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ویورز, امید ہے آپ کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا. تو اسٹے ٹیون ود اس, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.